ایران کو سعودی عرب کی سرزمین حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے کی گارنٹی ہم نے لے کر دی۔ ایران کے معاملے پر پاکستان کے پرخلوص سفارتی کوششوں کو ملک کے اندر غلط رنگ دینا مناسب نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پاکستان کی سفارتی کوششوں پر سینٹ کو بریفنگ۔ کہا احتجاج کرنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ ہم نے امریکہ سے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو جاری رکھنے کی بات منوائی ہے۔ مسئلے کے سفارتی حل کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے بہت کوششیں کی، اب بھی مسئلے کے حل کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کے خلیجی ممالک پر حملے نہ ہوتے تو امریکہ اور اسرائیل کے ایکشن کے خلاف ان ممالک کے ساتھ مل کر یکساں موقف دیتے۔ ہماری کوششوں سے ایرانی قیادت بخوبی واقف ہے، اسی وجہ سے ایرانی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان کے نعرے لگے۔ حکومت کا مشرق وسطی کی صورتحال پر پارلیمانی لیڈرز کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کیمرہ اجلاس کل 11:30 بجے طلب کر لیا۔ سیاسی قیادت کو ملک اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم کے بشیر رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ملاقات۔ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ محمود اچکزئی کا چند رہنماؤں کی بجائے پوری پارلیمنٹ یا کم از کم سینٹ کو بریفنگ دینے کا مطالبہ۔ رانا ثناء اللہ سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ملاقات۔ اجلاس سے متعلق سوال پر بیرسٹر گوہر نے کہا بانی پی ٹی آئی کی ہدایات واضح ہیں، ایوان کے اندر اور باہر فیصلہ محمود اچکزئی کا ہوگا۔ حکومت اور اپوزیشن میں اختلافات چلتے رہتے ہیں، قومی سلامتی کے معاملے پر ہم ایک پیج پر ہیں۔ رانا ثناء اللہ بولے اجلاس میں شرکت کے لیے کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیل کا تہران پر بڑا حملہ۔ ایرانی حکومت کے اعلیٰ ترین حکام کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ صہیونی فوج کا کہنا ہے تہران میں لیڈرشپ کمپلیکس پر 100 طیاروں سے حملہ کیا اور 250 بم گرائے۔ صدارتی بیورو، پاسداران انقلاب کے بنیادی ڈھانچے اور کمان مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے سرکاری ریڈیو اور ایرانی براڈ کاسٹنگ ہیڈ کوارٹرز کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ادھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا حکومتی سرگرمیاں جاری ہونے کا دعویٰ۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ حالت جنگ میں ہے لیکن ایران میں حکومتی سرگرمیاں جاری ہیں، صوبائی گورنروں سے براہ راست رابطے میں ہیں۔ صورتحال غیر معمولی ہے لیکن ملکی نظام رکا نہیں ہے، پورے ملک میں معمول کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے سے 2 ڈرون ٹکرانے کے بعد آگ لگ گئی۔ سعودی وزارت دفاع اور امریکی سفارت خانے کی تصدیق۔ عمارت خالی ہونے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریاض اور القرات شہر کے قریب 8 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کویت اور ریاض میں امریکی سفارت خانے نے عارضی طور پر بند۔ سفارت خانے پر حملے کے بعد سعودی عرب نے کہا کہ اسے جوابی کارروائی کا حق حاصل ہے۔ پاسداران انقلاب کا بحرین میں امریکی فضائی اڈے پر 20 ڈرونز اور 3 میزائل سے حملہ۔ کمانڈر اور ہیڈ کوارٹرز کی عمارت کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ عراق کے ریجن اربیل میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ۔ منامہ اور دوحہ میں بھی دھماکے سنائی دیے۔ عمان کے کمرشل پورٹ پر ایندھن کے ٹینکرز پر متعدد ڈرونز حملے۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق ایران نے صرف فوجی تنصیبات نہیں بلکہ پورے قطر میں حملے کیے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے خلیجی ممالک پر 450 میزائل، 1140 ڈرونز حملے کیے ہیں۔ قطر اور سعودی عرب میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹ گرفتار۔ امریکی تجزیہ کار اور ایکٹیوسٹ ٹکر کارلسن کے مطابق یہ ایجنٹ دونوں ملکوں میں بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ان کے مطابق یہ ایران کے ساتھ ساتھ قطر، متحدہ عرب امارات، بحرین، سعودی عرب، عمان اور کویت کو نقصان پہنچانا اسرائیل کا ہدف تھا۔ کارلسن کے بقول اسرائیل اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ دوسری جانب ایران کے نائب وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سعودی آئل فیلڈ پر حملہ نہیں کیا، اپنے سعودی بھائیوں کو اس سے آگاہ کر دیا ہے۔ اپنی خود مختاری اور اپنی سرزمین کے تحفظ کی خلاف ورزی کو قبول کیا ہے، نہ ہی کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے ترجمان کی بریفنگ۔ بولے ایران نے ہمارے شہری علاقوں پر حملے کیے، ایرانی حملوں میں 3 افراد جاں بحق، 68 زخمی ہوئے۔ ہم اس تنازع میں توسیع نہیں چاہتے۔ خطے میں استحکام کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ یو اے ای پر ایران کی جانب سے 186 میزائل حملے کیے گئے، 172 ناکام بنائے، 6 سمندر میں گرے۔ ہمارے پاس طویل عرصے تک دفاع کی صلاحیت موجود ہے۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے ہم کشیدگی میں کمی کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن اپنے دفاع کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کے لیے ٹریفک کیمروں کو ہیک کیے جانے کا انکشاف۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق اسرائیل نے کئی سال قبل ہی ایرانی ٹریفک کیمرے ہیک کر لیے تھے۔ کئی سال تک ان کی ویڈیوز خفیہ طور پر تل ابیب کے سرورز پر منتقل ہوتی رہیں۔
पासुरा स्ट्रेट पर मुहाफिजों और ड्राइवरों की नकलो हरकत की मॉनिटरिंग होती रही। कंपाउंड के अंदरूनी मालूमात और पार्किंग पॉइंट्स की निशानदही की गई। एल्गोरिथम के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों की निगरानी की गई। इनके मामूलात, गाड़ी खड़ी करने के मकाम और काम के रास्ते मालूम किए गए। इसराइल और CIA को खामनाई की मीटिंग की पेश की इत्तला थी। हमले के वक्त मोबाइल टावर्स जुज़वी तौर पर गैर फाल हुए, जिससे अमला मुमकिना वार्निंग से महरूम रहा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर चौथे रोज भी हमले जारी। दारुल-हुकूमत तेहरान, इस्फहान और शिराज में धमाके। ताज़ा हमलों में पासदाराने इनकलाब के 18 अहलकार शहीद। 4 दिन से जारी हमलों में ईरान में शहादतों की तादाद 787 हो गई। अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद होने वाली मनाम एलिमेंट्री स्कूल की 160 तालिबात की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हमले में शहीद 160 तालिबात की कब्रों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, ये वो रेस्क्यू है जिसका ट्रंप ने ईरानी अवाम से वादा किया था। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि आलमी बरादरी को जिम्मेदारी अदा करना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जो अमल शुरू किया है बहुत जल्द यूरोप को भी लपेट में ले लेगा। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने लबनान में भी फ़ज़ाई हमले तेज़ कर दिए। लबनान के जुनूब में ज़मीनी दरअंदाजी भी शुरू कर दी गई है। हज़ारों शहरी बेघर हो गए। 30,000 से ज़ायद अफराद शेल्टर में पनाह लेने पर मजबूर हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान पर हमले की हैरान कुन वजह बता दी। कहा कि अमरीका को पहले से मालूम था कि इसराइल ईरान पर हमला करने वाला है, जिसके बाद खदशा था कि तेहरान अमरीकी मफादात को निशाना बना सकता है। अगर दिफाई इक़दाम किया जाता तो अमरीका को ज़्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ता। इसी खतरे के पेश नज़र अमरीका ने पेशगी कार्रवाई की। अमरीकी रुकने कांग्रेस जोआकिन कास्त्रो का कहना है कि मार्को रूबियो ने मान लिया कि ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका को इसराइल ने धकेला है। ईरान पर हमले के लिए उकसाकर इसराइल ने अमरीका को खतरे में डाला है। मार्को रूबियो ने वो बात तस्लीम कर ली जो हम पहले से जानते हैं। अमेरिका इसराइल की जानिब से एक इख्तियारी जंग में दाखिल हो चुका है। नाम नहाद ईरानी खतरा कभी मौजूद ही नहीं था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, अमरीकी और ईरानी दोनों के खून का बहना इसराइल को तरजीह देने वालों के ज़िम्मे है। अमरीकी अवाम बेहतर के मुस्तहिक हैं। उन्हें अपने हुक्मरानों से अपना मुल्क वापस लेना चाहिए। खामनाई का कत्ल मजहबी जुर्म है जिसके संगीन नताइज होंगे। अमरीका की अपने शहरियों को मशरिक़ वुस्ता के 14 ममालिक से फौरी तौर पर निकलने की हिदायत। एडवाइजरी में कहा गया है कि बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इसराइल बशमूल मगरबी किनारे और गजा, उर्दन, कुवैत, ओमान, लबनान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन में मौजूद अमरीकी फ़ौरन निकल जाएं। कनाडा की अपने शहरियों को फौरी तौर पर दुबई छोड़ने की हिदायत। कहा कि खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ार न करें, ज़मीनी रास्ते से ही सऊदी अरब या सल्तनत ओमान पहुँचें। उधर ईरानी हमलों के पेश नज़र खलीजी ममालिक में अमरीकी कौंसलर खिदमात मुअत्तल कर दी गई। चीन का ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन फौरी बंद करने का मुतालबा जंग पड़ोसी ममालिक तक फैलने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान की जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल का जायज़ हक तस्लीम करते हैं। फ्री कैन मिलिट्री ऑपरेशन बंद करें, जंग को फैलने से रोकें। ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कबूल नहीं किया जा सकता। ईरानी जौहरी मसला बिलाखिर सियासी और सिफारती हल की तरफ लौटेगा। चीन अपना तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। उधर रूस का भी ईरान के खिलाफ जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा, अमरीकी और बैनुल-अक़वामी मालूमात के मुताबिक ईरान के पास जौहरी हथियार बनाने का कोई सबूत नहीं और ना ही ऐसा कोई मंसूबा था। ईरान मुज़ाकरात चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब बात नहीं हो सकती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि ईरान का फ़ज़ाई दिफा, एयरफोर्स, नेवी और क़यादत ख़त्म हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर मुस्तरद कर दी। कहा कि जंग के लिए हमारे पास हथियारों की लामहदूद सप्लाई मौजूद है। मेरी बेतौकीरी के लिए खबर में गलत मालूमात दी गई। मैंने अपनी पहली मुद्दत में भी फ़ौज की तामीर नौ की थी, अब भी कर रहा हूँ। अमेरिका एक बड़ी जीत के लिए तैयार है। ट्रंप का ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने को खारिज इम्कान करार देने से गुरेज। कहा, इम्कान है कि ज़मीनी फ़ौज की ज़रूरत नहीं होगी। जल्द ईरान पर बड़े हमले करने जा रहे हैं। जंग 4 से 5 हफ्ते जारी रह सकती है।
ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत पाक फौज की कार्रवाइयाँ जारी। अब तक अफगान तालिबान रजीम के 464 तारिंदे मारे गए, 665 से ज़ायद जख्मी। दुश्मन की 188 चेक पोस्टें तबाह, 31 कब्जे में ले ली गई। 192 टैंक, असलहा बरदार गाड़ियाँ और आर्टिलरी गन्स भी तबाह कर दी गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने अफगान तालिबान रजीम के नुकसानात के अदाद शुमार जारी कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज का पक्तिका में अफगान पोस्ट पर कब्जा, सबसे लाली परचम लहरा दिया। नंगरहार में फ़ज़ाई कार्रवाई करके खुदगानी बेस तबाह कर दी। अफगान तालिबान की मज़ीद 3 पोस्टें भी उड़ा दी गई। पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म से हुकूमती कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नए सूबों और NFC अवार्ड पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सख्त मौक़िफ़ से आगाह किया। पीपल्स पार्टी वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में 28वीं आईनी तरमीम पर बहस। वज़ीर-ए-आज़म ने नई कानून साजी पर हिमायत मांगी। पीपल्स पार्टी ने मुशावरत न करने से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। शहबाज शरीफ की हुकूमती रहनुमाओं को कानून साजी में इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने की हिदायत। कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अहम फैसलों में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का हर कदम पर साथ दिया, जिस पर मशकूर हैं। मुलाकात में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान इसराइल जंगी सूरत हाल पर बात की गई। नए सूबों और NFC अवार्ड पर डेडलॉक बरकरार। दोनों जमातों का सियासी तनाव कम करने पर इत्तेफाक। IMF जायजा मिशन के पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान से पायदार मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात और रेवेन्यू बढ़ाने का मुतालबा। सेहत और तालीम के शोबों में अखराजात बढ़ाने पर जोर। सूबाई मुलाज़मीन के असास ज़ाहिर करने में बैंक्स की तरबियत नाकाफ़ी करार। स्टेट बैंक और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट बैंक्स को तरबियत देंगे। नैब से मालूमात के तबादले के तरीक़ाकार पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़र-ए-सदारत कैशलेस इकॉनमी के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की डिजिटल अदायगियों के निज़ाम के अहदाफ को मुक़र्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने की हिदायत। तनख्वाहों, पेंशन्स और वेंडर्स को अदायगियाँ रास्त के डिजिटल अदायगी के निज़ाम पर मुंतकिल करने पर मुआशी टीम की पज़ीराई। कहा कि तमाम सरकारी इदारे शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के बिल्स पर QR कोड की सहूलत फराहम करें ताकि डिजिटल अदायगियों को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके। बानी PTI को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की मुतफारिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त को नंबर लगाने की हिदायत। तोशाखाना फौजदारी केस में बानी के निजी हॉस्पिटल से इलाज से मुतालिक केस जस्टिस सरबार मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि हम आपकी अपील और दरख्वास्त दोनों सुन लेते हैं। लतीफ़ खोसा की दरख्वास्त कल ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पेपर बुक तैयार होने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। हॉस्पिटल मुंतकली की दरख्वास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया गया। मरकजी अपील आइंदा हफ्ते मुकर्रर कर रहे हैं। तैयारी के साथ आइएगा। केस 10 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। तोशाखाना जाली रसीद केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। बानी की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबल गिरफ्तारी का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि तोशाखाना जाली रसीदों के केस में जमानत मंजूर की जाती है। प्रोसिक्यूशन कोई सबूत पेश न कर सकी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि हमने रसीद सोशल मीडिया पर देखी, आज तक उस रसीद का फोरेंसिक ही नहीं कराया गया। बानी की आला शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी के मुकदमे में भी जमानत मंजूर। प्रोसिक्यूशन अफवाज के खिलाफ तकरीर या सबूत अदालत पेश न कर सकी। नामा एहतजाज और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में भी प्रोसिक्यूशन सबूत देने में नाकाम। एहतजाज के मुकदमात में बानी की जाए वक़वा पर मौजूदगी साबित नहीं होती। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई है। एजेंडा इसराइली असर को पाकिस्तान की सरहद तक लाना है। इस्लामी दुनिया में इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। फ़लस्तीन आज़ाद और पाकिस्तान महफूज रहे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान का दिफ़ा नाकाबिल तस्ख़ीर कौमी सलामती मजबूत हाथों में है। हमारी दिफ़ाई सलाहियतें आज़मूदा और नाकाबिल तरदीद हैं। हमने हमेशा बाहमी एहतराम और बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए। हमारे किसी मुल्क के खिलाफ बालादस्ती के अज़ाइम नहीं। अपने मुल्क को जंग से दूर रखें, एतदाल से बात करें। सेनेटर शहर रहमान का ऐवान में खिताब। बोली कि बहुत नाजुक मोड़ है, अपने मुल्क और अपने लोगों को बचाएं। पाकिस्तान की कोशिश होनी चाहिए कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराए जाएं। तीसरी आलमी जंग से अपने मुल्क और खित्ते को बचाएं। सेनेटर अली जफर ने कहा कि इसराइल और अमेरिका ने खतरनाक रास्ता चुना है। अमेरिका में रिपोर्ट आई है कि कोई सबूत नहीं कि ईरान इसराइल और अमेरिका पर कोई हमला कर रहा था। ये गैर कानूनी जंग है। इसराइल ने अमेरिका को फंसा दिया है। ग्रेटर इसराइल के प्लान को ईरान ने रोका हुआ था। तेहरान रास्ते से हट गया तो कोई भी अरब मुल्क नहीं बचेगा।
मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के सबब आज भी 8 मुल्कों की फ़ज़ाई हदूद और फ्लाइट ऑपरेशंस बंद। दुबई, दोहा, अबू धाबी, शारजाह, कुवैत और बहरीन एयरपोर्ट पर ज़्यादा मुतासर। मशरिक़ वस्ता के 7 बड़े एयरपोर्ट्स की 10,000 परवाज़ें मनसूख हो चुकी। कतरी एयरलाइन ने फ़्लाइट ऑपरेशन की बहाली फ़ज़ाई हदूद खुलने से मशरूत कर दी। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज भी 155 परवाज़ें मनसूख। 4 दिन में मशरिक़ वस्ता के लिए पाकिस्तान की मनसूख परवाज़ों की तादाद 6,000 से ज़्यादा हो गई। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के अमरीका और इसराइली हमलों में ईरान की ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीब नतन्स को निशाना बनाने की तस्दीक। कहा कि हमलों में इमारत को कुछ नुकसान ज़रूर पहुंचा है। ईरानी जौहरी तनसीब से किसी किस्म के ताबकारी का इम्कान नहीं है। ट्रंप ने रजीम चेंज का पागलपन ना छोड़ा तो तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी। रूसी सलामती काउंसिल के नायब सरबराह दिमित्री मेदवेदेव का बयान। इंटरव्यू में कहा, ईरान अमेरिका और इसराइल के हमले बर्दाश्त कर लेगा। अमेरिका ने हमला करके ईरानी कौम को मुत्तहद कर दिया है। ईरान दुगनी तेजी से कोशिश करेगा कि न्यूक्लियर हथियार हासिल करे। ईरान जंग से अमेरिका और इसराइल ने अपने शहरियों को ज़्यादा खतरे से दो चार कर दिया है। ये अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की जंग है ताकि वो आलमी तौर पर गलबा कायम कर सकें। भारतीय कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी की ईरान इसराइल जंग पर मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। कहती हैं कि मोदी सरकार ने इसराइल को तरजीह देकर भारत की सफारती आज़ादी कुर्बान कर दी। ईरान के सुप्रीम लीडर के कत्ल पर भारत का रद्द अमल मध्यम है। ये मुबहम मौक़िफ़ दरअसल भारत की रिवायती ख़ारिजा पॉलिसी से बुज़दिलाना गद्दारी है।